وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس ذکرہ وحتى تترك الأئمة ذکرہ علی المنابر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی نصیباور حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین اکرام، ہم سبوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے 10 بڑی بڑی نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ہم قیامت سے پہلے ان 10 بڑی نشانیوں کو نہ دیکھ لیں۔ ان بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا ظہور ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کو فراموش نہیں کر دیں گے، اور ائمہ حضرات ممبروں سے اس کے تذکرے کو بھول نہیں جائیں گے۔ یعنی دجال کو جس وقت لوگ فراموش کر دیں گے، ائمہ حضرات ممبروں سے اس کا تذکرہ بند کر دیں گے، اس کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کرنا چھوڑ دیں گے، اس موقع سے دجال اس دنیا میں ظہور پذیر ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ حضرات کو خصوصی تاکید کی ہے کہ وہ ممبروں سے دجال کے فتنے سے لوگوں کو باخبر کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ انسان کس طور پر دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ حاضرین کرام، انشاءاللہ دجال کے فتنے کے تعلق سے ہی آج کا خطبہ ہوگا، اور ہم صحیح احادیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دجال کا ظہور کب ہوگا، اور یہ کہ دجال کا فتنہ کتنا سنگین ہوگا، اسی طرح سے دجال کس طرح سے ختم ہوگا، اور پھر یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال کا ان سے سامنا ہوگا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اور دجال کے فتنے سے ایک مسلمان کیوں کر بچ سکتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین کرام، سب سے پہلے ہمیں یہ بات تسلیم کرنا چاہیے، ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ دجال کا فتنہ امت محمدیہ کے اوپر سب سے بڑا فتنہ ہوگا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جس وقت سے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر کے اور قیامت کے ظہور تک، قیامت کے قائم ہونے تک دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا عباد اللہ انہا لم تکن فتنۃ علی وجہ الارض، کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی فتنہ منذ ذرا اللہ آدم اعظم من فتنۃ الدجال، کہ اللہ رب العزت نے جس وقت سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ آپ تصور کریں کہ اللہ کے اس امت نے کتنے بڑے بڑے فتنے دیکھے ہیں، اور انسانیت پر کتنے بڑے بڑے فتنے آئے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مطلق طور پر اس امت بلکہ انسانیت کے اوپر آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اب تک جتنے نبیوں کو ارسال فرمایا ہے، جتنے نبیوں کو اس کائنات میں بھیجا ہے، تمام نبیوں نے
दज्जाल के फितने से उम्मत को आगाह किया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन नबीन इल्ला हज़्ज़रा उम्मतहु मिन दज्जाल, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने नबियों को इस रुए ज़मीन पर मबऊस किया है, तमाम नबियों ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से बाखबर किया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया है कि हुवा यखरुजु फीकुम ला महाला, कि दज्जाल उम्मत मुहम्मदिया के अंदर ही ज़हूर पजीर होगा, यानी इस उम्मत के अंदर ही ज़हूर पजीर होगा। चूँकि हम आखिरी उम्मत हैं, हमारे बाद कोई नबी यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस रुए ज़मीन पर कोई नबी नहीं आने वाला है और उनकी उम्मत आखिरी उम्मत है, तो ज़ाहिर सी बात है कि दज्जाल का फितना इसी उम्मत के अंदर बपा होगा और ये उम्मत ही दज्जाल के फितने का सामना करेगी। हाज़िरीन किराम, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीसों में दज्जाल के दावे को, यानी जब दज्जाल आएगा तो उसके क्या क्या दावे होंगे, इस बात को बयान फरमाया है, जिसका खुलासा यह है कि हुवा यब्दउ फयक़ूल अना नबियुन, कि सबसे पहला दावा दज्जाल का यह होगा कि वो कहेगा कि मैं नबी हूँ। दज्जाल का सबसे पहला दावा क्या होगा कि वो अपने आप को नबी बताएगा, जबकि प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला नबी बादी, कि मेरे बाद इस रुए ज़मीन पर कोई नबी नहीं आने वाला है। बल्कि दूसरी हदीस में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया है कि मेरे बाद तकरीबन 30 ऐसे झूठे लोग आएंगे जिनमें से हर एक का दावा यह होगा कि वो नबी हैं, जबकि वो तमाम के तमाम झूठे होंगे, क्योंकि मैं ही आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत का सिलसिला बंद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हुवा युसन्नी फयक़ूल अना रब्बुकुम, कि दज्जाल दूसरे नंबर पे ये दावा करेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हारा पालनहार हूँ, तुम्हारा खुदा हूँ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें बयान फरमाई हैं जिसके ज़रिए से जो अल्लाह और दज्जाल के माबैन हद फासिल हैं, जिनके ज़रिए से हम अल्लाह को दज्जाल से फ़र्क कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बयान फरमाई कि ला तरौना रब्बकुम इल्ला बअद मौतिकुम, कि तुम अपने रब को मौत के बाद ही, यानी वफ़ात के बाद ही देख सकते हो। यानी जो लोग नेक होंगे, जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भेजी हुई शरीयत के मुताबिक अपने शब रोज़ को गुजारते रहे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के रोज़ मैदान महशर में या जन्नत में दुखूल के बाद उनके ऊपर सबसे बड़ा इनाम और इकराम ये करेगा कि वह रुयत बारी ताला से महजूज होंगे, यानी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार हर किसी को नसीब नहीं होगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो चीदा और चुनिंदा बंदे होंगे, नेक बंदे होंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब होगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के ताल्लुक़ से बयान फरमाया कि वो अपने आप को रब तो कहेगा, लेकिन वो लोगों के सामने होगा। और रब के ताल्लुक़ से हमें मालूम है कि रब क़यामत के बाद, यानी क़यामत के कायम होने के बाद दिखाई देगा। तो गोया कि वो उसका जो रब होने का दावा होगा वो झूठा होगा, वो गलत होगा। इसी तरह से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ताल्लुक़ से दूसरी निशानी ये बयान फरमाई है कि दज्जाल जो होगा काना होगा। व इन्ना रब्बकुम लैसा बिअअवर, दज्जाल की एक आंख जो है वो खराब होगी, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई ऐब नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न तो काना है, न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई आंख खराब है। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां बयान फरमाई हैं कि इन निशानियों को जब हम देखें तो हम यह अंदाज़ा लगाएं कि सामने वाला शख्स ये दज्जाल है और हम दज्जाल के फितने में वाक़े हो चुके हैं। इसी तरह से एक निशानी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया है कि इन्नहु मक्तूबुम बैना ऐनैहि काफिर, कि उसके दोनों आंखों के बीच में काफिर लिखा होगा। यक़राउहु कुल्लु मोमिन, बाज़ रवायतों में है कि जिसको
हर मोमिन इंसान यानी जो मुसलमान होगा उस लिखावट को, उस तहरीर को पढ़ लेगा। तो एक निशानी दज्जाल के झूठा और कज़्ज़ाब होने की ये भी है कि वो तो अपने आप को रब कह रहा होगा, अपने आप को इलाह बता रहा होगा, लेकिन उसकी पेशानी पर, उसके आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा, जिसको हर मुसलमान शख्स पढ़ लेगा और उसके फितने से मुतनब्बे हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीसों में दज्जाल के फितने के ताल्लुक से बयान फरमाया है कि उसके फितने कितने संगीन होंगे, कितने बड़े बड़े होंगे। हमने पहले सुना कि दज्जाल का फितना इस रूए ज़मीन पर सबसे बड़ा फितना होगा। तो सवाल पैदा होता है कि वो कौन कौन से फितने होंगे, किस तरह के फितने होंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि न मिन फितनतिही अन्न माहु नारन व जहन्नमन, कि दज्जाल के फितनों में से एक फितना ये होगा कि उसके साथ जन्नत और जहन्नम वो अपने साथ दोनों लिए घूमेगा। और लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नारुहु जन्ना व जन्नतुहु नार, कि वो जिसके बारे में कह रहा होगा कि ये जन्नत है वो हकीकत में जहन्नम है, लेकिन जिसे वो जहन्नम बता रहा होगा वह दर हकीकत जन्नत होगी। यानी वो मामले को मुश्तबा करके पेश कर रहा होगा, वो मुश्तबा करके लोगों के सामने पेश कर रहा होगा ताकि लोग उसके फितने का शिकार हों। उसके फितने का आलम यह होगा कि एक जगह तशरीफ ले जाओ, एक जगह जाएगा तो एक शख्स को आरी से चीर देगा और चीरने के बाद लोगों से कहेगा कि देखो इस शख्स को मैं दोबारा जिंदा करूंगा, इसके बाद भी ये शख्स मुझ पर ईमान नहीं लाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि वो शख्स उस आदमी को यानी दज्जाल उस आदमी को दोबारा जिंदा करेगा और दोबारा जिंदा करने के बाद कहेगा कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं तुम्हारा रब हूं। तो वो शख्स जिसको उसने मार करके दोबारा जिंदा किया होगा वो कहेगा कि अब तो मुझे पहले से ज्यादा यकीन हो गया है कि तू दज्जाल है, तू कज़्ज़ाब है और तू झूठा इंसान है। इसी तरह से उसके फितनों में से एक अहम फितना, एक बड़ा फितना ये होगा कि वो एक शख्स के पास जाएगा जिसके वालिदैन मर चुके होंगे और उस शख्स से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे वालिदैन को जिंदा कर दूं, यानी तुम्हारे माँ बाप को जिंदा, यानी बहुत पहले मर चुके होंगे, वो कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे वालिदैन को जिंदा कर दूं, तुम्हारे वालिदैन को दोबारा मैं जिंदगी अता कर दूं, तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे, मेरी हक्कानियत का एतराफ़ कर लोगे, मुझे इलाह मान लोगे, मुझे रब मान लोगे? वो शख्स कहेगा कि हाँ, अगर तुम मेरे वालिदैन को जिंदा कर देते हो तो फिर मुझे कोई शक नहीं रहेगा, मैं तुम्हें अपना माबूद मान लूँगा। चुनांचे वो कहे दो अपने साथ, उसके साथ जो शैतान होंगे उन शैतानों से कहेगा, तो दोनों शैतान एक उसके अम्मी का रूप धारण कर लेंगे और एक उसके अब्बू का रूप धारण कर लेगा। और इस तरह से सामने वाला ये सोचेगा कि इस शख्स ने वाकई मेरे वालिदैन को जिंदा कर दिया, और इस तरह से वो शख्स उसके चंगुल में फंस करके उसको अपना माबूद और इलाह मान लेगा और इस तरह से वो गुमराह हो जाएगा। हाज़िरीन किराम, कहने का मतलब यह है कि दज्जाल का फितना बहुत संगीन होगा और दज्जाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी ताकत देगा कि वो आसमानों को हुक्म देगा तो आसमान बारिश बरसाएगी, और इसी तरह से ज़मीन को कहेगा तो ज़मीन सब्जी उगाएगी, यानी हरियाली उगाएगी। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दज्जाल को कितना पावर और कितनी ताकत दे करके इस दुनिया में मबूज़ करेगा। और यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने को सबसे संगीन और सबसे बड़ा फितना करार दिया है। उस मौके से दज्जाल का फितना जब हर सू आम हो जाएगा और लोग उसके हाथों पर बड़ी तादाद में इस्लाम से फिर जाएंगे, तो उस मौके से ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे। अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदा उठा लिया है, और क़ुर्ब क़यामत जब दज्जाल का फितना आम होगा, दज्जाल इस दुनिया में अपना फितना फैलाएगा, उस मौके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में मबऊस फरमाएंगे, नाजिल फरमाएंगे,
तो दिमश्क की जामे मस्जिद के मीनार पे फज्र के वक्त ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे। उस वक्त मुसलमान फज्र की नमाज के लिए खड़े होने वाले होंगे। महदी अलैहिस्सलाम इमामत के लिए आगे बढ़ चुके होंगे, इकामत कही जा चुकी होगी। इतने में ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। महदी अलैहिस्सलाम उन्हें देख करके अपने मुसल्ले से पीछे हटने की कोशिश करेंगे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें रोकेंगे और कहेंगे कि आपके लिए इकामत कही गई है, आप मुसलमानों की इमामत कराएं। उस मौके से ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं की इक्तदा में, यानी महदी अलैहिस्सलाम की इक्तदा में सुबह की नमाज यानी फजर की नमाज अदा करेंगे और फिर उसके बाद मुसलमानों की जमात को लेकर के दज्जाल का पीछा करेंगे और दज्जाल को फिलिस्तीन के अंदर बाब-ए-लुद जो है, बाब-ए-लुद में उनका मुआवजा होगा और दज्जाल जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो उसी तरह से पिघल जाएगा या उसी तरह से काफूर हो जाएगा जिस तरह से नमक की बोरी को आप अगर पानी के अंदर रख दें तो 1 मिनट के अंदर वो पिघल जाता है। उसी तरह से दज्जाल की कैफियत होगी कि दज्जाल जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो नमक की तरह, जिस तरह से नमक को पानी में डाल देते हैं पिघल जाता है, उसी तरह से दज्जाल भी पिघल जाएगा। दज्जाल के ताल्लुक से मजीद कुछ बातें इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चलिए हमने मान लिया कि दज्जाल का फितना बहुत संगीन है। दज्जाल के फितने को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा फितना करार दिया है। सवाल पैदा होता है कि एक मुसलमान वो कौन से तरीक़े हैं, कौन से ज़राए हैं जिनको अपना करके दज्जाल के फितने से अपने आप को बचा सकता है, और कौन से ज़राए हैं जिनको अपना करके, जिनको बरूए कार ला करके एक मुसलमान दज्जाल के फितने से महफूज रह सकता है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये याद रखनी चाहिए कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद आखिर में जिन 4 चीज़ों से पनाह मांगा करते थे उनमें दज्जाल का फितना भी था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनति अज़ाबिल क़ब्रि व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनति दज्जाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 4 चीज़ों से हर नमाज के बाद यानी तशहुद आखिर में पनाह मांगा करते थे। चुनांचे हर मुसलमान को ये शेवा बनाना चाहिए या अपनी आदत बना लेनी चाहिए कि तशहुद आखिर में इन 4 चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमेशा पनाह तलब करे ताकि वो दज्जाल के फितने से आफियत में रहे। इसी तरह से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में ये भी बयान फरमाया है कि अगर कोई शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतों को याद कर लेता है, सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतों को याद कर लेता है, वो इंसान भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन हाफ़िज़ा 10 आयातिन मिन सूरतिल काफ़ी उसीमा मिन फितनति दज्जाल, कि अगर कोई शख्स दज्जाल के फितने से महफूज रहना चाहता है और तो उसे चाहिए कि वो सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतों को याद कर ले। इसी तरह से एक मुसलमान को कभी ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि उसका दज्जाल से मुआवजा हो। यानी हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर दज्जाल का सामना हमसे हुआ तो हम पक्के ईमान वाले हैं, हम दज्जाल को सबक सिखा देंगे। यानी झूठी हैकड़ी और झूठी जो शान दिखाते हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोका है और फरमाया है कि अगर कोई शख्स दज्जाल के बारे में सुने फलयना भी, तो वो शख्स क्या करे, दज्जाल से दूरी बना करके रखे। अगर वो ये शख्स सुनता है कि दज्जाल दुनिया में ज़हूर पजीर हो चुका है तो उसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर न करे बल्कि उसे दूरी बना करके रखे, क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्फिया कहा है कि फवल्लाहि इन्न रजुल ला याती फयत्तबिउहु बिमा यबअसु बिही मिन शुबहात, कि इंसान के पास इस कदर वो शुबहात पेश करेगा, इस कदर वो इश्कालात पेश करेगा जिससे कि इंसान मुतासिर होकर के उसको इलाह और उसको नबी तस्लीम कर लेगा। इसी वजह से कभी यह हमारी आरजू और ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि काश हम दज्जाल का ज़माना पाएँ, दज्जाल को देखें। इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से दज्जाल से अगर हम मामून रहना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे, क्योंकि
उसी सूरत में हम दज्जाल के फितने से महफूज रह सकते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दज्जाल के फितने से मामून रखना चाहे। वरना कोई कितना भी शख्स ईमान का ठोस हो, ईमान का मजबूत हो, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद उसके साथ शामिल हाल ना हो तो शख्स दज्जाल के फितने से महफूज नहीं रह सकता है। चुनांचे हमें चाहिए कि हम दज्जाल के ताल्लुक़ से जो बातें बताई गई हैं उन बातों को अज़बर रखें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि दज्जाल उसी वक्त ज़हूर पजीर होगा, ला यखरुजु दज्जाल इल्ला, दज्जाल उसी वक्त ज़हूर पजीर होगा जबकि लोग उसे फरामोश कर देंगे, अइम्मा हजरात मेंबरों से उसका तज़किरा नहीं करेंगे। और आज देखिए कि हम में से अक्सर लोग दज्जाल को फरामोश कर बैठे हैं, उसके फितने से पनाह नहीं मांगते, या उसके ताल्लुक़ से अइम्मा हजरात तज़किरा नहीं करते, या जानते भी हैं तो उन हक़ाइक़ का उन्हें इदराक नहीं है जिन हक़ाइक़ को अहादीस के अंदर बयान किया गया है, हदीस के अंदर जिनका तज़किरा किया गया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन हक़ाइक़ को जानें, समझें और इन हक़ाइक़ पर नज़र रखें और इसी तरह से दज्जाल के फितने से हम वक्त पनाह मांगें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बचने के जो तदाबीर बताए हैं उन तदाबीर को अपनाएं। जैसे कि सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतों को याद करें, उनका हमेशा उनकी तलावत करें, ताकि हम अगर खुदा न खास्ता दज्जाल का ज़हूर हमारे ज़माने में हो तो हम उसके फितने से महफूज रख सकें, हम अपने बच्चों को दज्जाल के फितने में से महफूज रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इब्न सय्याद के या इब्न साइद के ताल्लुक़ से लोगों को इख्तलाफ था कि आया ऐसा तो नहीं कि यही दज्जाल है, क्योंकि उसकी कैफियत बहुत मशकूक थी। वो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से आता है कि एक मौके से अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मदीना की एक गली में मिला और वो ऐसा फूल गया कि पूरी गली को उसने ढक लिया। सही मुस्लिम की रवायत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्तदाई इस्लाम में पूछा जाता था इब्न साइद के ताल्लुक़ से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ताल्लुक़ से कोई खुल करके जवाब नहीं दिया करते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके ताल्लुक़ से कोई बात नहीं बताई थी। और बाद में अल्लाह के एक मौके से उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको कत्ल करने की इजाज़त मांगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर वो दज्जाल होगा, सही मानों में दज्जाल होगा, तो तुम उसे कत्ल नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर दज्जाल नहीं होगा तो तुम एक मासूम इंसान को कत्ल करोगे। गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्तदाई इस्लाम में इब्न साइद के मामले में मशकूक थे कि आया वो दज्जाल है या नहीं है, लेकिन बाद में इंशाअल्लाह आइंदा खुतबों में ये बयान किया जाएगा कि दज्जाल का मामला फिर आगे चल करके इब्न साइद का मसला वाज़ेह हुआ था और मुसलमानों को उसके ताल्लुक़ से मालूम हो गया था। और फिर हुआ ये कि आखिरी ज़माने में इब्न साइद गायब हो गया, रुपोश हो गया और मालूम नहीं चल सका कि वो कहाँ गया था। और वो जब सहाबा किराम उसको कहा करते थे कि तुम दज्जाल हो, तो कहता था कि दज्जाल तो फितने में, दज्जाल जो है मदीने में दाखिल नहीं होगा, लेकिन मैं मदीने में हूँ, मैं कैसे दज्जाल हो सकता हूँ। हालांकि उसका ये इस्तिदलाल या मुसलमानों को बहलाने फुसलाने की जो बातें थी, दज्जाल उस सूरत में मदीने में या मक्का में दाखिल नहीं होगा जबकि वो अपने फितने के साथ और अपने फितने के साथ इस दुनिया में भेजा जाएगा, लेकिन पैदाइश के मरहले में वो मदीना में दाखिल हो न हो, यानी इंशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से आइंदा तफसील के साथ आइंदा खुतबों में बयान करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बार अल्लाह तो हमें दज्जाल के फितने को समझने और उस ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तदाबीर बताए हैं उन्हें बरूए कार ला करके दज्जाल से के फितने से महफूज रखने की तौफीक अर्ज़ानी फरमा। आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।